Hello, Kinsey. Good afternoon. Hello, Mansa. Hello, Shamita. I'm sorry if there was some misunderstanding today because already we had posted a material list long back for the full week. So I was very busy today, so I did not follow up. Your people are not assured about the material today. So I'm extremely sorry for that. Hope so all the material will be with you all because today we don't want something extra or anything special material. It is a normal drawing today regarding Pongal and Makar Sankranti. So it is normal. आपका ड्राइंग बुक का पेपर रहेगा, नॉर्मल कोई कार्डबोर्ड रहेगा ऐसा वाला, तो दैट विल ऑल्सो डू. So no issue for that. Good afternoon everyone. Still let people join. Good evening, Shamita. So all preparations done for Pongal, Lohri, Makar Sankranti. Everyone must be busy. कल पतंग उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? यहाँ पे तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, ड्यू टू कोरोना कोई इतना ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो रहा है. वी डोंट हैव एनी गैदरिंग्स हो गई है, तो अभी काइट का कुछ फेस्टिवल जैसे लग ही नहीं रहा है बॉम्बे में. तो ओके, शैल वी स्टार्ट एज यूजुअल. हेलो हिमा. हाय हिमा जी, आप तो बिजी रहेंगे पोंगल की फेस्टिवल्स की तैयारी में. So today we will be needing is one cardboard और drawing A4 size का drawing paper भी चलेगा, cardboard भी चलेगा, anything will be doing, कुछ भी चलेगा. What happen can see no? Then we will require acrylic colors. Today acrylic colors will be sky blue color, teal blue color, Persian blue color and cerulean blue color. ये हमारे 4 colors हैं आज, and white. We will be requiring these colors today. Wow, so many likes and hearts. Thank you everyone. Okay, ये हमारे यहाँ 4 colors है. We are going to make the sky today. Today we will be making a sky. And I had told you all for palette knife. अगर आपके पास में palette knife है तो it is okay. Butter knife है तो भी चलेगा. Butter knife भी नहीं है तो ऐसी बर्थडे की जो knife रहेगी ना, केक कटिंग की, ये knife भी चलेगी हमें. अगर ये भी नहीं है तो रेगुलर किचन में जो नाइफ रहती है वो भी चलेगी. ओनली थिंग इज दैट दिस सरफेस शुड बी ब्लंट एंड क्लियर. उसमें खड्डे खड्डे नहीं आने चाहिए. ओके, इट शुड बी ब्लंट एंड क्लियर. सी, ब्लंट है, बिल्कुल धार नहीं है इसमें, और पूरा शेप फ्लैट होना चाहिए. एंड देन वी विल बी रिक्वायरिंग इज सम कलर्स एंड ऑल दैट. कलर्स के बारे में मैंने बता दिया है. 1 पेंसिल एंड 1 राउंडर कंपास. ओके, सो शैल वी बिगिन? Are you all ready today? So अभी आज हम क्या करेंगे? We are taking first sky blue color. I will be taking today sky blue color, cerulean blue color, Persian blue color, teal blue color. So मैंने सब कलर्स निकाले हैं. थोड़ा वाइट लगेगा कलर मुझे हमें साथ में आज, and white color also. So I am removing the colors. किंसी क्या हुआ? नो, वाई यू साइड नो किंसी? ओ गॉड. जब इतने सारे लाइक्स एंड हार्ट्स आ रहे हैं, वेयर इज द पब्लिक? पीपल कहाँ है? नाउ सी, आई एम टेकिंग टुडे, आई एम ड्रॉइंग ऑन A4 साइज पेपर. सो मैं पेपर को स्लांट ऐसे पकड़ूंगी. आई एम होल्डिंग द पेपर स्लांट एंड विद द हेल्प. प्लास्टिक शीट रखना मैं भूल गई, ये तो मेरा टेबल पूरा गंदा हो जाएगा. 1 minute, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट प्लीज. आई एम सॉरी.
Okay, for Sankranti, hello Niyati. You're not celebrating Sankrant? Good afternoon everyone. Just जो people have joined just now, उनको मैं बता रही हूँ, मैंने कुछ भी आज स्टार्ट नहीं किया है. Even I am late today. I was also busy with my other workshops की तैयारी है मेरी. I am having an advanced workshop of Lipan art on glass bottle and all that. So I was busy with all that. If you people want to join, you all can join that group. और आप लोग वहाँ पे भी ये मेरे वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो. सो मैंने ये A4 साइज का पेपर लिया है. आपके पास में कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड इज ऑल्सो वेल एंड फाइन, नहीं तो A4 साइज का ड्राइंग पेपर भी मैंने वो लिया है. I can see I will give you a personal message tomorrow for my next 20. On 20 I have my workshop. I'll give you on your personal number, okay? Now बटर नाइफ ले है तो बटर नाइफ, रेगुलर नाइफ है तो रेगुलर नाइफ. आई विल बी यस पोंगल इज टुमारो नियति. यस बट टुमारो तो ऑल आर हॉलीडे ना फॉर क्लासेस. कल क्लासेस में छुट्टी है बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑल विल बी बिजी विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. सो फॉर दैट रीजन कल क्लास नहीं लिया है. हमारी दो मैम है ना, दूसरी रिनी मैम एंड हिमा बिंदु मैम, उनका भी कल फेस्टिवल है. सो दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल टुमारो. सो फॉर दैट रीजन कल हमने छुट्टी दी है आप लोगों को. एंजॉय योर फेस्टिवल विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ वर्क. मैंने जैसे आपको बताया, जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट माई कैमरा. आई विल टिल्ट माई कैमरा टुमारो. Happy Pongal in advance, Niyati. Thank you very much. Same to you. Okay, so I'll be starting. I hope so. My work is clear. Is it seen clearly? Just give me yes or no, and I'm visible. My voice is clear. Just give me yes or no, or give me thumbs up if it is clear. I can proceed towards my work. ये मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. सिर्फ मुझे टिप में ही नाइफ में कलर लेना है. See how I am doing now. I am going to give cross lines this way. Simple cross lines. कहीं कहीं के randomly I am giving you cross lines. मुझे क्रॉस में चाहिए. दुहिता, हेलो दुहिता, इज इट क्लियर? ओके फाइन. मैंने पेपर को क्रॉस में ऐसे रखा है, स्लांट में ऐसे, एंड विद द हेल्प ऑफ अ बटर नाइफ और अ पेपर नाइफ, वॉट एवर यू ऑल हैव, उसमें रैंडमली आपको स्ट्रोक्स देने हैं. So that you can give a cross में इफेक्ट. I want the strokes in cross. मेरे को straight cross नहीं चाहिए. I am giving in cross this thing strokes. ये मेरा नहीं चल रहा है, मैं इसी से कर रही हूँ. I am using this butter knife. मैंने इसमें कलर लिया एंड मैं रैंडमली मैं इसको I am giving strokes. मेरे को क्रॉस में स्ट्रोक्स चाहिए. फॉर दैट रीजन मैं क्रॉस में इसको स्लांटिंग, इन स्लांटिंग पोजिशन I am randomly I am giving strokes. पूरे में नहीं देने हैं. अगर कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो तो आप एक वाइट कलर का वॉश दे सकते हो, वाइट कलर का कलर दे सकते हो आप उसमें. पूरे में नहीं देने हैं, कहीं कहीं रैंडमली देने हैं. वी विल बी मिक्सिंग 2-3 कलर्स. सो रैंडमली आई वांट टू गिव दी स्ट्रोक्स. मेरे को पूरे में नहीं देने हैं. दिस इज अ मल्टीमीडिया इफेक्ट. वन पर्टिकुलर इफेक्ट यू विल गेट इन दिस. लाइक दिस. मैंने पूरे में नहीं दिए हैं, बट यू कैन फील द क्रॉस लाइन्स जो मैंने दिए हैं, ऐसे शेड्स मैंने दिए हैं. यू कैन सी दैट. स्नेहा हेलो, गॉट इट? आपको दिख रहे हैं ऐसे क्रॉस, मैंने क्रॉस में दिए हैं. ओके, देन आई विल कम टू द नेक्स्ट कलर. स्काई ब्लू कलर हो गया है. देन आई विल कम टू द सेरेलिन ब्लू कलर. सेम प्रोसेस. थोड़ा सा कलर लिया. अभी ब्लू के ऊपर हमें नहीं देना है. जहां जहां जगह है गिव स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स. बड़े बड़े स्ट्रोक्स मत देना. गिव स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स. ओके, डोंट गिव बिग स्ट्रोक्स. मैंने स्काई ब्लू इसके फैलाया बिकॉज माई बेस इज लिटिल मिल्की वाइट कलर. सो फॉर दैट रीजन मैंने पूरा थोड़ा सा ब्लू ज्यादा फैलाया है. लंबे लंबे स्ट्रोक्स मत देना. द स्ट्रोक शुड बी पैची.
पैची लगने चाहिए। गिव रैंडम स्ट्रोक्स, कहीं पे भी एनी हाउ यू हैव टू गिव द स्ट्रोक्स, गिव देम रैंडमली। नाउ आई विल कम टू सील ब्लू कलर। Teal blue color I am using. My favorite color teal blue color, बहुत प्यारा कलर है। This is the effect which we are going to give for the sky. Teal blue हो गया। Now I will take dark blue colors, Persian blue, या तो फिर आपके पास में ultramarine blue है तो you can use that also. इसमें से मैं थोड़ा ही लूँगी, इसमें blue color ज़्यादा नहीं देना है। Just कहीं कहीं पे randomly I will give a blue का touch up. मेरे को ज़्यादा dark shade नहीं देना है इसमें। I will give just simple light strokes, ज़्यादा dark नहीं shade देना है, because we want to give the sky effect. Now I will use this white color. I am taking white color. मैं white color के भी same ऐसे ही strokes दूंगी randomly, जहाँ पे अभी जगह बचा है मैं वहीं पे white color I will be using. Hope so it is visible to everyone. मैं जो कलर्स कर रही हूँ, hope so it is visible to everyone. I want the strokes in slanting, so मैं slant में ही brush knife घुमा रही हूँ. This is one type of a texture. And this way I will color the full paper, या तो cardboard, whatever you all are using. Hello Shipra. मैं बिल्कुल भी ब्रश को स्ट्रेट नहीं ले रही हूँ, सॉरी नाइफ को. इट इज एब्सोल्युटली इन अ स्लांटिंग एरिया. ऑल द स्ट्रोक्स आर गोइंग इन स्लांट ओनली. मैंने कहीं पे भी सीधे स्ट्रोक्स नहीं दिए हैं. होप सो इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टेल मी, बिकॉज ये दोबारा मैं नहीं बता पाऊंगी. वंस द कलर इज फिनिश्ड I will not be able to show you again. So if you are not understanding, please ask me right now only. So this way, see, I have completely colored the whole page. I wanted to give the sky effect. So this my drawing color is completed. दिख रहे strokes all in slanting lines. All the other slanting lines. Okay? Is it clear to everyone? आ गया है सबको समझ में? Shall I move towards the next step now? आपका बेस में कहीं पे भी व्हाइट नहीं दिखना चाहिए. बी केयरफुल टू दैट. नीचे पेपर का बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए. सो कलर इट प्रॉपरली. अगर कहीं दिख रहा है तो वापस लाइट ब्लू कलर, टेक एनी कलर, और उससे आप उसको कंप्लीट कर दीजिए. ज़्यादा डार्क कलर्स मत यूज करना. मेक इट वाइट एंड स्काई ब्लू कलर ओनली, बिकॉज यू वांट टू गिव इज द स्काई इफेक्ट. अगर कहीं पे वाइट छूट रहा है, पेपर दिख रहा है, तो यू कैन गिव द इफेक्ट ऑफ स्काई ब्लू कलर.
यू कैन डू विथ ब्रश ऑल्सो. अगर नाइफ से नहीं जम रहा है तो यू कैन डू विथ ब्रश ऑल्सो. गिव स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स विथ द ब्रश. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ नाइफ, you can use your brush also, painting brush. But I wanted to teach you all the knife texture. Give small small strokes. Here it is completed. So this coloring portion has completed. Now with the help, अगर आपके पास में ज्योमेट्री कंपास है तो यू कैन यूज दैट. इफ नॉट तो आपके पास में कोई भी राउंड सरफेस का कोई भी चीज़ है तो उससे भी आप सर्कल बना सकते हो. नो कंपल्सेशन. विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर पेन मैं आपको बताती हूँ. आप लोग मार्कर पेन से कर सकते हो तो मार्कर पेन से, नहीं तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो. मैं यहाँ पे इतना तो बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा छोटा कुछ है. नहीं तो विद द हेल्प ऑफ अ कंपस, मैंने कंपस लिया है एंड आई एम टेकिंग अबाउट 3 to 4 इंचेस का डायमीटर. हाँ, कितना लूँ मैं? आई विल टेक 5 सेंटीमीटर सर्कल. मैंने 5 सेंटीमीटर का लिया है एंड आई एम नाउ मेकिंग अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर्स इन दिस एज. नाउ अभी ये एज में यहाँ पे कोई भी एक कॉर्नर में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. सो लेट द कलर ड्राई. थोड़ा सा गीला है. आप लोग थोड़ा वेट करना सो दैट इट ड्राइज कंप्लीटली. आई एम ड्रॉइंग वन सर्कल. You people please wait for some time until your full color is dried up. नहीं तो कलर वापस पेंसिल से स्क्रीच हो जाएगा. ओके, सो दिस वे आई हैव ड्रॉन वन सर्कल. आपका बड़ा पेज है तो आप बड़ा सर्कल भी बना सकते हो. आई हैव ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माई पेपर. ओके, यहाँ से ना एज आप लोग ज्योमेट्री की जैसे डिजाइन्स बनाते हो, फ्लावर शेप और ऑल दैट यू विल मेक ना, तो आपको वही सेम यहाँ पे भी बनाना है. लेट मी फिनिश कंप्लीट विद द पेंसिल. फिर मैं स्केच पेन से या तो फिर डायरेक्ट कलर से आपको बता दूंगी हाउ टू मेक इट. जैसे ज्योमेट्री में फ्लावर्स बनाते हैं ना, सेम वे यू हैव टू मेक वन फ्लावर इन दिस. मैंने 5 सेंटीमीटर्स का सर्कल लिया है. And you have to make one flower. Hope so it is clear till now to everyone. Any questions with anyone? So please ask me. So this way I have completed my circle. You all will not be able to see it when I will be coloring. So that time you all will be able to see it now. Okay? तो ऐसे मैंने एक सर्कल बनाया. विजिबल नहीं है आपको अभी. जस्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के अंदर मैंने फ्लावर्स की डिजाइन विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने किया है. नाउ आई विल बी टेकिंग इज ब्लैक कलर और मैं इसकी बॉर्डर लाइन एंड फ्लावर के अंदर की डिजाइन में ड्रॉ करूंगी. आई एम गिविंग आउटलाइन. अभी इसके लिए देयर आर 2 ऑप्शंस. आपके पास में 3D लाइनर है तो आप 3D लाइनर से भी काम कर सकते हो. नहीं है 3D लाइनर तो 0 नंबर का ब्रश लीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक कलर मैं ये सर्कल को आउटलाइन दे रही हूँ. सॉरी, मोटा ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है. You have to make a medium line, not too thin, not too fat. See this way.
ओके, फर्स्ट मैं फ्लावर बनाऊंगी, देन द आउटर सर्कल, मैं सर्कल का पूरा आउटर पार्ट बाद में करूंगी. फर्स्ट आई एम मेकिंग द फ्लावर. डोंट मेक वेरी थिन लाइन्स, लाइन थोड़ी थिक ही रखना. मेरा ब्रश 0 साइज है तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइंस भी इतनी पतली हो रही हैं. ऐसे मैंने पूरा फ्लावर बना दिया है. नाउ होप सो इट इज विजिबल, राइट? इज इट विजिबल टू एवरीवन? नाउ आई विल कंप्लीट द सर्कल. मेरा कलर अभी ड्राई नहीं हुआ है, मेरे हाथ में चिपक रहा है. सो फॉर दैट रीजन यू पीपल ऑल्सो लेट द कलर फर्स्ट ड्राई एंड देन आप लोग आगे का काम देन बाद में स्टार्ट करना. ओके मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. सर्कल थोड़ा आड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दैट लाइट ग्लेयर आ रही है मेरे को सन की बाहर से. तो आई विल कवर इट लेटर ऑन. मैं यहाँ पे थोड़ा बाद में कलर कर दूंगी. सो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द सर्कल. नाउ इफ़ यू ऑल आर फाइन, मैं डायरेक्टली ब्रश से ही मैं अभी इसके स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ. आई एम कलरिंग ड्रॉइंग द स्ट्रिंग्स डायरेक्टली विद द ब्रश ओनली. इससे पहले मुझे थोड़ा यहाँ पे एक ब्रश से स्काई ब्लू कलर अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज मेरी लाइंस ब्लैक कलर की बाहर निकल के आ गई थी. तो विथ वन ब्रश मुझे थोड़ा उसको कलर को रिपेयर करना पड़ेगा. बट आई विल हैव टू वेट फॉर द कलर टू ड्राई. लेट्स होप सो मर्ज हो जाए इसके साथ में यहाँ पे बिकॉज ब्लैक कलर इज ऑल्सो नॉट येट ड्राइड. लेट इट ड्राई, फिर बाद में इसमें हम करेंगे. लेट इट ड्राई कम्प्लीटली बिकॉज वो ब्लैक कलर वापस उठ के बाहर आ रहे हैं. तो वी विल डू इट लेटर ऑन. लेट इट ड्राई. ओके नाउ ये ड्रीम कैचर के हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे.
रैंडमली आई एम गिविंग, इफ यू ऑल आर गुड इन ड्राइंग वेल एंड फाइन, नहीं तो फिर आप लोग फर्स्ट पेंसिल से करो, पेंसिल करने के बाद में फिर बाद में आप लोग उससे ऐसे रैंडमली आई एम गिविंग स्ट्रोक्स. These lines also should be thick only. गिव थिक लाइंस, ज़्यादा पतली लाइंस मत रखना. बिकॉज दीज आर द स्ट्रिंग्स, ये धागे हैं ड्रीम कैचर के, तो ये मोटे ही रहते हैं. थ्रेड का इफेक्ट देना है हमें इसमें, सो दे शुड बी थिक ओनली. When you are using 2-3 techniques of drawing, coloring and all that, that drawing is known as mixed media. and आजकल अभी मिक्स मीडिया बहुत बहुत चल रहा है. बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं मिक्स मीडिया में. नाउ वी विल गिव द बीड इफेक्ट. जैसे मोती लगाते हैं धागों में, सेम वे वी विल गिव अ बीड इफेक्ट. तो व्हाट आई विल डू नाउ, अभी ब्लैक कलर थोड़ा मैं ज़्यादा लूँगी. एंड ये थ्रेड के जहाँ पे रिंग में थ्रेड बांधते हैं, आई शो यू फर्स्ट दिस मच. ये कितना हो चुका है ये देखिए. ऐसे मैंने स्ट्रिंग्स बनाई हैं इसकी. ओवरलैपिंग भी चलता है एक दूसरे के ऊपर, डजेंट मैटर, बिकॉज ये हवा में उड़ रहे हैं तो ये कैसे भी भागते हैं ये धागे. गॉट इट. नाउ जब आई विल बी मेकिंग बीड्स, नाउ बीड्स का इफेक्ट देना है तो यू हैव टू मेक स्मॉल स्मॉल सर्कल्स जहाँ पे स्ट्रिंग्स बांधी हुई है ड्रीम कैचर के रिंग के ऊपर. तो आई विल बी गिविंग सर्कल्स. एनीवन हैज सीन अ रियल ड्रीम कैचर? किसी ने बनाया है थ्रेड से ड्रीम कैचर? हैज एनीवन मेड? किसी ने बनाया है थ्रेड से ड्रीम कैचर? हाउ टू मेक अ ड्रीम कैचर? दिस वे. नाउ स्ट्रिंग्स में भी कहीं कहीं बीच बीच में बीड्स होते हैं, तो वी विल अगेन मेक स्मॉल स्मॉल सर्कल्स इन द स्ट्रिंग के बीच में भी. कहीं पे एक, कहीं पे दो, आप ऐसे दे सकते हो इफेक्ट. वन और टू ऐसे आप इफेक्ट इसमें दे सकते हो. नीचे भी मोती हो सकते हैं. इट इज ऑल योर इमेजिनेशन.
हम लोग मोती का इफेक्ट दे रहे हैं। वी आर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द बीड्स, जैसे धागे में मोती बांधते हैं तो इसका इफेक्ट दे रहे हैं। बहुत सिंपल है आज का भी आर्ट। जैसे कल का कैसा लगा था आप लोगों को? डिड यू ऑल एंजॉय यस्टरडे सिक्की आर्ट? किसी ने तो बना के भी ग्रुप में पोस्ट किया था। आई थिंक सो इट वाज किंसी, आई थिंक सो। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बीड्स। बहुत अच्छा बनाया था कल। Whoever had made yesterday's 4 साइड्स बना के उसको लैम्प पूरा प्रॉपर बना के पोस्ट करना ग्रुप में। बहुत अच्छा सुंदर काम किया था, बहुत नीट एंड वेरी गुड वर्क। ये हमारा बीड का वो स्ट्रिंग्स का काम हो गया। वी हैव फिनिश्ड आवर स्ट्रिंग्स। नाउ वी विल मेक इज द फेदर्स। फेदर्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी लाइट एक पेंसिल से मैं ड्राइंग कर रही हूँ। सिंपल फेदर्स जैसे रहते हैं, लीफ का शेप बनाते हैं एक, जस्ट रैंडमली लीफ का एक शेप बनाया। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग इज अ पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर। लाइट पर्पल कलर रेडी कलर भी आता है। आई टेल यू द नंबर ऑफ द शेड। इट इज वायलेट 25 सॉरी, वायलेट कलर है। Now again we will make the leaves also with the help of the knife effect. Knife की इफेक्ट से हम leaves भी बनाएंगे। So what we will do again, just see, मैंने leaf टिप में कलर लिया and randomly I will give strokes. Randomly I am giving strokes half में, this way। देखिए, आई हैव गिवन द स्ट्रोक्स रैंडमली। हाफ द लीफ, हाफ लीफ में एक साइड करना है, हाफ लीफ में सेकेंड साइड बाद में करना है। थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद में। ओके, टेक कलर इन योर नाइफ। टिप पे ही कलर लेना है, ज्यादा कलर नहीं लेना है। टिप पे कलर लो। अगेन सेम वे, जस्ट ड्रैग योर नाइफ। कलर खत्म होता है नाइफ में, कलर लो एंड ड्रैग योर नाइफ। ऑटोमेटिकली आपको लीफ का इफेक्ट आ जाएगा। दिस वे, ओके। जस्ट ड्रैग योर नाइफ। आपको जितने लंबे लीव्स करने हैं उतने लंबे लीव्स आप कर सकते हो। हाफ पोर्शन में ही करना है, सेकेंड हाफ बाद में करेंगे। फर्स्ट लेट देम ड्राई। आई होप सो एवरीथिंग हैज अंडरस्टूड। आया है समझ में सभी को? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? हैज एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू मेक लीव्स? प्लीज टेल मी येस और नो। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग प्लीज टेल मी। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वापस करके बताऊंगी रफ पेपर के ऊपर, बट एटलीस्ट टेल मी येस और नो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू हिमा। नाउ वी विल डू टू द ऑपोजिट साइड। सेम वे ऑपोजिट साइड में हाफ से ही अपने को लेना है।
Just drag your brush. Sorry. मेरा बाहर निकल गया. Where is my other knife gone? मैं इससे ड्रैग करके निकाल लेती हूँ. जैसे वन साइड हाफ साइड यहाँ से किया था, सेम वे वी विल डू इट दिस वे ऑल्सो. Same way we will drag the knife. एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उसको ऑन द अदर एज से आप निकाल लीजिए कलर को. ऐसे. सी माय फुल लीफ इज रेडी. ये मेरा पूरा एक लीफ रेडी हो गया है. यू विल गेट दिस इफेक्ट ऑफ द लीफ. गॉट इट. ये पूरा लीफ के जैसे ही लगेगा आपको. विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इफेक्ट ये लीफ के जैसा ही लगेगा आपको. ओके. नाउ द सेकेंड वन. माई दिस लीफ इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड. तो इसको मैंने बाहर के बाजू निकाला है. सी दिस लीफ है. ओके. गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑटोमेटिकली आपको कट्स मिलेंगे लीव्स के. सो डोंट वरी फॉर दैट. सी. गॉट इट. ऑटोमेटिकली वो थिकनेस आ जाएगी कलर की आपके लीफ में. सो यू विल गेट दैट इफेक्ट ऑफ द लीफ. इसको थोड़ा टाइम ड्राई होने को टाइम लगेगा बिकॉज इसमें थिकनेस है कलर्स में. सो फॉर दैट रीजन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ड्राई होने के लिए. कीप ऑन साइड्स आपकी इसकी चेंज करते जाइए बिकॉज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में लीव्स आपकी अलग अलग साइज एंड शेप में जाएंगी. सो यू हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग योर बुक और कार्डबोर्ड. आप जो भी जिसके ऊपर भी बना रहे हो उसके ऊपर से. हाफ लीव भी बनेगा कहीं पे तो दैट विल ऑल्सो लुक नाइस. दो लीव्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं वो भी अच्छा लगेगा बिकॉज इट इज नेचुरल. वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं. दिस इज फ्लाइंग इन द स्काई. तो जैसे भी जा रहा है उसको जाने दीजिए, मत रोकिए. गिव इट अ नेचुरल लुक. बड़े लीव्स भी बना सकते हो, छोटे लीव्स भी कर सकते हो. सो कोई इश्यू नहीं है इसमें. Okay, so this way all our leaves are also ready. Now just a simple touch up of white color because इसमें थोड़ा 3D effect आना चाहिए. तो we will just give a little touch of white color in this.
बिल्कुल थोड़ा सा नाइफ में कलर वाइट लेना है, वेरी लिटिल, एंड सिंपल सिंपल ओनली बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे ही आपको इसमें देना है, ज़्यादा नहीं, एजेस पे जाना है, ज़्यादा वाइट कलर नहीं देना है। सिंपल लाइट वाइट कलर स्ट्रोक्स देने हैं आपको, सिंपल। ओनली फॉर शेडिंग और कुछ भी नहीं। एक्चुअली आई कांट डू इट नाउ बिकॉज कलर्स अभी वेट हैं, तो जस्ट रैंडमली आई एम गिविंग द स्ट्रोक्स। कहीं वाइट पर्पल के साथ में मर्ज हो जाएगा, कहीं पे शेडिंग भी आएगी। ओके, थोड़ा हल्का सा ही वाइट देना है, ज्यादा वाइट मत देना इसमें। टिंज, बिल्कुल थोड़ा सा एक टिंज ही देनी है वाइट कलर की। सो दिस वे थोड़ा सा ही वाइट का इफेक्ट देना है, ज्यादा इफेक्ट नहीं देना है। नाउ अभी लीव्स में जो नीचे का पोर्शन जहां पे थ्रेड से बांधा हुआ है, अगेन यू हैव टू गिव अ बीड इफेक्ट, वहां पे भी आपको बीड इफेक्ट देना है। तो वी विल गिव एन हाफ सर्कल, उसमें एक हाफ सर्कल का इफेक्ट देना है। जहां पे अपना ये थ्रेड से लीव बांधा हुआ है, तो वी विल गिव एन सर्कल इफेक्ट ओवर देयर ऑल्सो। गॉट इट? हाउ इज इट? कैसा लग रहा है? अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा टचअप देना है, मेरा कलर जो मिक्स हो गया था, आई विल जस्ट मैं स्काई ब्लू कलर से थोड़ा वहाँ पे फिनिशिंग दे दूंगी। मैं सिंपल थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर ले रही हूँ, वहाँ पे मेरा सर्कल में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आई एम जस्ट कलरिंग एंड गिविंग इट अ ब्लेंड। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दैट कलर विद द अदर कलर्स, अदरवाइज वो थोड़ा गंदा लग रहा है। हमेशा आपका कहीं मिस्टेक होता है, लेट इट ड्राई कंप्लीटली, ड्राई होने के बाद में ब्लेंड इट विद द कलर्स, तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्या मिस्टेक हुई थी आपकी। मैं 2-3 कलर्स को ब्लेंड कर दूंगी तो वो कलर्स में पता नहीं चलेगा। रैंडमली आई एम गिविंग स्ट्रोक्स, तो वो मेरा मर्ज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। एज इफ वी हैव गिवन क्रॉस स्लांट लाइनिंग, तो ये इसमें ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ था करके। कहीं पे वाइट कलर छूटता है तो सेम इफेक्ट यू कैन गिव एंड कंप्लीट इट विथ अ ब्रश। अगर पेपर का कोई पोर्शन छूट रहा है तो ऐसे ही स्ट्रोक्स दे के आप उसको रैंडमली कवर कर लीजिए। कहीं पे लीव्स बनाते बनाते आपके लीव्स में से भी कहीं कलर बाहर आ गया है, तो यू कैन गिव वन स्ट्रोक रैंडमली एंड कंप्लीट योर पेंटिंग।
थैंक यू शिप्रा। सो दिस वे इतना होने के बाद में अभी जो बीड्स बनाए हैं, व्हाट वी विल डू टू द बीड्स नाउ, बीड्स के ऊपर हम गोल्डन कलर लगाएंगे सो दैट यू विल गेट द इफेक्ट ऑफ 3D इफेक्ट मिलेगा आपको। आपको ऐसे ही लगेगा द रियल में ये कोई एक बीड मोती चिपकाया हुआ है। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग पर्ल गोल्ड कलर। आई थिंक सो एवरीवन इज हैविंग दिस पर्ल गोल्ड कलर मेटालिक विद। अभी जहाँ पे वो ब्लैक सूख गया होगा वहीं पे ये कलर का इफेक्ट दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी कहाँ कहाँ पे ये सूख गया है। जस्ट गिव वन डॉट इन द सेंटर, तो ऑटोमेटिकली आपका सूखने के बाद में यू विल फील कि ये 3D इफेक्ट से मोती ही यहाँ पे लगाया हुआ है। दीज आर ऑल द फ्री टेक्निक्स आई एम गिविंग यू ऑल। ये आपको फ्यूचर में दूसरे काम, जब आपको 3D इफेक्ट देना होगा तो आपको बहुत काम आएंगी ये सब टेक्निक्स। जस्ट एक सिंपल डॉट डाल दो तो ऑटोमेटिकली ये शाइन करेगा एंड यू विल गेट द 3D इफेक्ट। सिंपल एक छोटा सा डॉट डाल दो बस। इन द सेंटर ऑफ द ब्लैक सर्कल जो मैंने मोती बनाए थे, ड्राई होने के बाद में ही लगाना। ड्राई होने से पहले करेंगे तो ब्लैक एंड गोल्डन दोनों मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सूखा नहीं है, ये भी नहीं सूखा है। सो दिस इज ड्राइड। यस, मेरे 2-3 बाकी हैं। इट विल गेट ड्राइड, उसके बाद में ही मैं करूंगी। अभी पूरी रिंग में भी आप राउंड सर्कल्स बना सकते हो डॉट्स के। यू कैन गिव डॉट्स ऑन द रिंग्स ऑल्सो। ऑन द फ्लावर के जहाँ पे एजेस हैं वहाँ पे भी आप सर्कल्स बना सकते हो छोटे छोटे, कि जैसे वहाँ पे मोती लगाए हुए हैं। ड्रीम कैचर की रिंग रहती है ना, उसमें बहुत सारा डेकोरेशन आप कर सकते हो। ऐसे लेट देम ऑल्सो ड्राई। अभी हम क्या करेंगे, सी दिस कंप्लीटेड, दिस आर्टिकल ऐसे पूरा एनहांस हो जाएगा। अभी ये सर्कल है तो सर्कल में आप बटन लगा सकते हो, कोई शो पीस लगा सकते हो, वॉट एवर यू ऑल हैव। मेरे पास में एक ऐसा वाला है, फ्लावर है, तो विद द हेल्प ऑफ अ फैब्रिक ग्लू मैं इसके ऊपर ये स्टिक कर रही हूँ। आपके पास में वुडन बटन रहेंगे, कुंदन का स्टोन रहेगा, वॉट एवर यू हैव, आप उसको इसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। मैंने फैब्रिक ग्लू लिया, दैट इज योर चॉइस। आपके पास में जो भी कुछ भी है स्टिक करने के लिए आप उसको इसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। मेरे पास में एक फ्लावर है ये, तो फ्लावर को मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ इन द सेंटर। आपके पास में लकड़े के बटन है तो लकड़े का बटन भी आप लगा सकते हो, वॉट एवर यू हैव। आपको कोई बंदिश नहीं है, सेंटर में जो भी लगाना है उसका आप लगा सकते हो। एंड अभी ये मेरा थोड़ा कलर डल हो गया है तो मैं इसके ऊपर वापस गोल्डन कलर थोड़ा करूंगी तो इसमें अच्छा सा शाइन आ जाएगा। थोड़ा सा डल हो गया है मेरा ये, तो आई एम जस्ट गिविंग वन गोल्डन कलर का टच अप। तो इट विल लुक वेरी नाइस, बहुत अच्छा शाइन आ जाएगा इसमें।
लकड़े के बटन्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं आजकल, तो वो तो बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास है, लेकिन वो प्लेन बटन है, ऐसा वाला शाइनिंग वाला ही बटन है। आई हैड दिस, फिर सोचा कि ऐसे ही कुछ लगा दूँ, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो एज कल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है, हम पतंग तो नहीं चगा रहे हैं कल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रीम कैचर वी हैव मेड एन इफेक्ट ऑफ अ ड्रीम कैचर फ्लाइंग इन द काइट. My article is completed. Hope so everyone of you all have liked it and you all will give a good submission. सभी को बहुत पसंद आया होगा आज का आर्ट, एंड आई वॉन्ट दिस सबमिशन आज के आज ही हो जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है ये बनाने में. इट इज़ वेरी इजी. अभी बहुत लोग तो साथ में ही बनाते भी होंगे शायद. I think so many of you all must have started trying doing this. Okay, so with this help of this dream catcher, wishing you all a very happy Pongal, happy मकर संक्रांति. ये ड्रीम कैचर बनाने के साथ में आपके सारे ड्रीम्स भी सक्सेस हो जाए. बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हैप्पी, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति. नाउ आई थिंक सो कल क्लास नहीं है, एंड कल परसों शायद है क्लास आपका. So any one of the other two teachers, they will be taking your class tomorrow, day after tomorrow. Tomorrow is a holiday for Pongal and Makar Sankranti. So thank you everyone for watching this class patiently and peacefully. Wish you all a happy holiday. Enjoy with the family and friends. Bye bye.